Hey everyone! So today we're going to study about electricity. This is the topic of class 10th, and electricity is also known as electric current. Now let us proceed with this topic. Can you see electricity and electric current? There is a single term which is common in both these terms. That is electricity. This electricity is common in both the things, and the electricity means electrons. Yes, electrons. इलेक्ट्रॉन्स की सिटी, इलेक्ट्रॉन्स का करंट मीन्स दिस चैप्टर ये इलेक्ट्रॉन्स के ही इर्द गिर्द घूम रहा है. सो व्हाट डज इट से? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स और इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, नाउ सी, आपने देखा होगा वाटर करंट है. आप कहते हैं ना कि दिस इज अ वाटर करंट. व्हेन द वाटर फ्लोज, व्हाट वी से, द वाटर करंट इज देयर. तो करंट मतलब होता है फ्लो, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So if you have to define what is electric current, it means it is the flow of electrons in one direction. Flow of electrons in one direction. In one direction. मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सारे के सारे they are moving in one direction. This is known as इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन अगर ऐसा हो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तब फिर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन. आई नो कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है. सो लेट मी टेल यू. सी, everything around us, I mean everything, this table, this board, this curtain, this everything around us, these are made up of atoms. Yes, atom is the smallest particle of matter. बहुत सारे atoms जब मिलते हैं तो वो एक matter बनाते हैं. अब atoms के अंदर भी कुछ particles होते हैं. Atom is divisible. In the atom we have a nucleus. This is a nucleus. Can you see this center point? This is a nucleus. Yes, this is a nucleus. And in the nucleus we have proton and neutron. We have protons and neutrons. Protons जो होते हैं वो positively charged होते हैं. They have positive charge. Neutrons are neutral. They do not have any charge. And what are electrons? देखो, आपने solar system देखा है? In our solar system, sun is the center. The same way, nucleus is the center. And sun के आसपास बहुत सारे orbits होते हैं. जैसे ये एक orbit है, ये एक orbit है. These are the orbits. This is the orbit. This is the orbit. And in those orbits, planets are revolving. In the same way, in the orbits, electrons are revolving. So, atom is like a solar system. The sun, the nucleus, the orbits, and in the orbits, electrons are there. And the electrons are negatively charged. The charge on the electrons are negative. So we have two charged particles in an atom, electron and proton. Electron is negatively charged and proton is positively charged. So when the electrons flow, then we say electric current is produced or electricity is produced. So एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं. I मतलब नोट दिस I. I means I. इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम I से डिनोट करते हैं. जैसे आपका फोर्स होता है, फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, आपके मास को हम M से डिनोट करते हैं. ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं. एंड जो इसकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर. AMPERE, ampere. The unit of the current is ampere. For example, the unit of the weight is kg, unit of the mass is kg, unit of the force is newtons, the unit of the distance is kilometer. In the same way, the unit of the current is ampere. I think it is clear to you guys. Current को denote करते हैं I से. This is electric current and इसकी unit है ampere. अब एक formula होता है, वो होता है I am QT. Yes, I am QT. उसमें से M हटा दो. I QT. You have to need मतलब this thing I QT. This is I QT. This is the important formula. I QT. I is electric current. Q is the charge. मतलब electrons. कितनी electrons है? Q is the charge. And T is the time. So this is known as I QT. Like for example, someone asks you कि बेटा
कितना करंट फ्लो कर रहा है, यू विल से 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, बट हाउ विल यू फाइंड आउट, कैसे पता चलेगा 50 है 100 है कितना है? दिस इज द फॉर्मूला विच विल टेल यू दैट हाउ मच करंट इज फ्लोइंग। अब देखो होता है क्या है, सपोज दिस इज अ वायर, ये तार है, इसको मैंने एक जगह ये है एक जगह ये है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से इधर जा रहे हैं, कितने टाइम में जा रहे हैं? सपोज 2 सेकंड में जा रहे हैं। 2 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं? 2 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है Q और जो टाइम है वो है 2 seconds। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द Q एंड द टाइम इज द सेकेंड। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला, थोड़ा समझाने के लिए बताया मैंने आपको। IQT मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड द करंट देन यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला IQT। एक जैसे सपोज आपके पास चार्ज है 100 कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, COULOMB। The unit of charge is coulombs. The unit of charge is coulombs. It is not cooler, it is coulomb. C से डिनोट करते हैं इसको। एंड टाइम सपोज आपके पास है 10 seconds। अब आपको बताना है करंट कितना फ्लो करा। यू हैव चार्ज, हाउ मच चार्ज यू हैव? 100 coulombs एंड हाउ मच टाइम यू हैव? 10 seconds। सो करंट कितना हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू 100/10 which is equal to 10 ampere. So this is the answer. I hope it is clear to you guys. So हमने देखा कि what is current? Current is flow of electrons. और हमने देखा कि current को I से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट एम्पियर होती है। And one thing more, if you have to find it numerically, then I have told you the formula IQT. Now मैंने आपको बताया there is a wire. In that wire current is flowing. But can you tell me कि इस wood में, इस प्लास्टिक में क्या करंट फ्लो होता है? नहीं होता। Why so? ऐसा क्यों है कि कुछ चीजों में तो करंट फ्लो हो रहा है और कुछ चीजों में करंट फ्लो नहीं हो रहा? The things in which current flows, these are known as conductors. Conductors. And the substances in which current do not flow, these are known as insulators. अब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव मेटालिक ऑब्जेक्ट, हमारे पास आयरन है, उसमें से करंट फ्लो होता है। क्यों? बिकॉज iron, they have electrons, they have free electrons and the free electrons are able to move. जैसे for example I'll give you एक जेल है, जेल में कैदी भी हैं और जेलर और पुलिसमैन भी हैं। तो जो पुलिसमैन है वो तो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जो कैदी है ना वो कहीं फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इन द सेम वे जो आपके कंडक्टर्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव। दिस इज द रीजन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और जब इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करेंगे तो कहाँ से वो करंट फ्लो पास करेंगे? तो डेफिनेशन सिंपल सीधी ये है कंडक्टर्स की, द substances which allow current to pass through them is known as conductor. The substances which allow current to pass through them. This is a substance, अगर ये अपने अंदर से अपने आसपास से करंट को पास होने देगा तो ये हमारा कंडक्टर है, और नहीं होने देगा तो ये इंसुलेटर है। Again I am telling you, the substances which allow current to pass through them are known as conductors. For example, we have metallic objects. And insulators are the substances which do not allow current to pass through them. And current is flow of electrons. So I hope it is clear to you. Now a very important question comes in exams also, that what is the direction of current? Current कौन सी direction में flow करता है? अब इसके पीछे ना there is एक छोटा सा contradiction है. The direction of current. Before telling you this, I need to tell you a circuit diagram. This is a battery. This is a positive terminal. This is a negative terminal. मैंने इसके साथ ही वायर को कनेक्ट किया. I have a bulb here. ठीक है. अब आपने देखा है सर्किट डायग्राम्स में क्या होता है. सर्किट डायग्राम्स में जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा. यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और बल्ब ग्लो किया, फिर इधर आया. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव.
direction of current according to this picture is from positive to, oh sorry यार मेरा थोड़ा सा हो गया है, it is like this. तो the direction of current according to this picture is from positive to negative. This is the conventional direction. मतलब पुराने ज़माने में reduce हमने ये किया था, ये ऐसे flow करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. The direction of current in actual reality में जो है वो उल्टा है, negative to पॉजिटिव. तो याद करने का तरीका देखो, पिक्चर में अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव रखना है. डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं ना, तो शुरू करो. इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, पूरे एक चैप्टर का जो आपका बेसिस है वो इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो फिर शुरू भी नेगेटिव से होना चाहिए. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन. लेकिन कन्वेंशनल जो कि दकियानूसी पुराने जमाने वाला है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव. आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज. So what we studied till now, we studied what is electric current. Electric current is flow of electrons. What are electrons? Electrons are the negatively charged particles of an atom. Then we studied about the formula, like electric current is I, Q is charge or number of electrons, and T is time. So IQT, I is equal to Q by T. With this formula you will find out the electric current. एंड इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, एंड टाइम की सेकंड. एंड देन वी स्टडीड अबाउट कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, एंड देन डायरेक्शन ऑफ करंट. एक और चीज बताती हूँ मैं आपको. देखो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज electric current. Static electricity or electric current. Now what is the difference between these two? देखो इलेक्ट्रिक करंट तो पता चल चुका है. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन. दिस इज इलेक्ट्रिक करंट. नाउ व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? आपने देखा होगा कि आप वो बच्चों ने बहुत करते थे, स्केल लेके आप सर पे रब करते थे, छोटे छोटे पीसेस होते थे आपके पेपर के, उससे पास लगते थे, वो अट्रैक्ट हो जाता. दिस इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. कभी कभी सर्दियों में आप नीचे कॉटन क्लॉथ पहनते हो, ऊपर स्वेटर पहन लो, तो स्वेटर के साथ चिपकता रहता है आपका क्लॉथ बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अभी वो होता क्या है, होता ये है कि सपोज आपका ये स्केल है, ठीक है, दिस इज अ स्केल एंड दिस इज पेपर पार्टिकल्स. ठीक है, अब क्या है कि स्केल में आपके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. वी हैव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी सेम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, एक चीज याद रखना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मार के पीछे भेज देंगे, नेगेटिव नेगेटिव इसको पीछे मार के धक्का भेज देंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे. जैसे आप लोग देखते हैं मेल एंड फीमेल बोथ अट्रैक्ट ईच अदर. इन द सेम वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर ऑपोजिट्स एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं. अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है. जब ये दोनों हम थोड़ा रब करेंगे आपस में, व्हेन दिस विल बी रब्ड टू समथिंग, जैसे मैंने इसको अपने बालों पे रब किया, मैंने इसको अपने हेयर पे रब किया, तो पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब आप दो चीज़ों पर रब करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, एक जगह पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव नेगेटिव. 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, दोनों जगह ऑपोजिट बराबर है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे. दैट्स इट, इतना ही है यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रॉन समझने वाला. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं. This is the result of static electricity. What is static electricity? Opposite charges attract to each other, and electric current means flow of electron. So for this video, that's all about this video. Let me summarize what we studied. We studied about what are electric current. Electric current is flow of electrons. Then what are electrons? Electrons are negatively charged particles. Then we studied about IQT. I is current,
Q is charge, T is time, I का यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की होती है कूलम्स एंड T की होती है सेकेंड्स. Then what we studied about conductors and insulators. Conductor substances which allow electricity to pass through them, and insulators do not allow electricity or electric current to pass through them. Then we studied about direction of current. Current flows from negative to positive. Actual direction is from negative to positive, but कन्वेंशनल पुराने जमाने वाले जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है. अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. देन वी स्टडीड अबाउट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट्स ऑल. इफ यू लाइक द वीडियो, like it, subscribe it, share with your friends, and if you have any question regarding this chapter or other chapter, then you can comment in the comment box. Thank you.